اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ آمین آمین۔ سب تشریف رہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ کیا آپ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کیجیے، چند پلوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دیجیے۔ بھول جائیے آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، بھول جائیں آپ کے آگے کون بیٹھا ہوا ہے، بھول جائیں آپ کے پیچھے کون ہے، بھول جائیں آپ کے بچے کدھر ہیں۔ بس اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے اور خداوند سے کلام مانگنا شروع کیجیے۔ کہیں خداوند سے، خداوند آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے ہے۔ کہیں خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر سے چوہے بندھن یسوع نام سے ٹوٹ جائیں گے۔ آج ہماری زندگیاں یسوع نام سے آزاد ہو جائیں گی۔ آج ہمارے بندھن یسوع نام سے کھل جائیں گے اور ہم مسیح میں آزاد ہو جائیں گے۔ ہاللویا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے وہ باتیں سیکھیں گے جو خداوند تیری مرضی کے مطابق کی ہیں، جو خداوند تو چاہتا ہے۔ آج ہم تیرے کلام میں سے سیکھیں گے، آج ہم تیرے کلام میں سے وہ ساری باتیں جو تو چاہتا ہے ہمیں سکھانا، ہم سب کو سکھانے کی قدرت تیرے پاس ہے۔ ہاللویا۔ خداوند تمام کلیسیا کو چھوڑ بلیس کر، ایک ایک جان کو سر کی چانس لے کر پاؤں کے تلووں تک اپنے کلام کے لیے تیار کر اور اپنے روح کو بڑے زور سے نازل فرما اور دیکھ تیری کلیسیا تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اپنے کلام کو نازل فرما، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ ہاللویا آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاللویا۔ ہم نے رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب میں بڑی خوبصورت بات سیکھی اور پڑھی کہ کلام کے اندر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ آخری دنوں کے اندر کیا ہوگا۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا اور آپ نے مجھے بتانا ہے، میں جو بھی پوچھوں گی آپ نے مجھے ساتھ ساتھ بتانا ہے، آپ نے جاگتے رہنا۔ ہاللویا۔ کون کون جاگ رہا ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ لہرا کر دکھائے کون کون جاگ رہا ہے۔ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ خدا نے سب کو زبانیں دی ہیں۔ ہاللویا۔ ہم سب کے پاس زبان ہے اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں زبانیں نہیں دی بلکہ جلالی زبانیں دی ہیں۔ ہاللویا۔ جب ہم خدا کے کلام کو بولتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ سو ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ کیا کروں گا جی؟ اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، ہر بشر پر۔ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں، کون جی؟ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ کیا کریں گی؟ بلند آواز سے بولیں، کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی۔ تمہارے بیٹے بھی نبوت کریں گے، تمہاری بیٹیاں بھی نبوت کریں گی۔ ہاللویا۔ اب سب سے پہلی بات جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے نبوت۔ کہ نبوت ہے کیا چیز؟ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم نبوت کا اور نبی کا جو کام ہے، نبی کیا کیا کرتے تھے؟ جن کو خدا نبی مقرر ٹھہرا دیتا تھا ان کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، ان کو کلام دیا کرتا تھا۔ اور نبی کا کام ہے خدا سے ڈائریکٹلی کلام لینا اور آگے ڈیلیور کرنا۔ کیا کرنا جی؟ خدا سے کلام لینا اور ڈیلیور کرنا۔ آج کی جو عبادت ہے یہ بہنوں کی عبادت کے نام سے رکھی گئی ہے۔ بہنوں کی عبادت ہے جی آج۔ اور آج ہم سیکھیں گے کلام میں سے کہ بہنوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ بہنوں کی خدمت کیا ہے، اور بہنوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں کیا اتھارٹیز دی ہیں، کیا اختیار دیے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت کیا ہے جی؟ خدا سے ڈائریکٹلی کلام کو لینا اور آگے ڈیلیور کرنا۔ اور یہاں پر کلام کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی۔ اس کا مطلب
बेटे भी खुदा से कलाम को लेंगे, डिलीवर करेंगे, बेटियां भी खुदा से कलाम को लेंगी और क्या करेंगी, आगे लेकर जाएंगी। बेटियां कलाम आगे लेकर जाएंगी। बेटियों को कलाम आगे देने का इख्तियार किसने दिया है? मेरे साथ रहिए, बेटियों को कलाम आगे डिलीवर करने का इख्तियार कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। किस पर डालूंगा जी? हर बशर पर डालूंगा। क्या सिर्फ कहा गया कि बेटों पर डालूंगा? क्या सिर्फ बेटियों पर डालूंगा? क्या सिर्फ जवानों पर डालूंगा? क्या सिर्फ बुढ़ों पर डालूंगा? लिखा है कि हर बशर पर डालूंगा। आपने आज एक एक लफ्ज को सीखना। मैं अपना रूह हर बशर पर डाल दूंगा और बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बेटियां या औरतें कलाम नहीं सुना सकती। हमारे मसीही बहन भाई ये सवाल करते हैं कि बेटियां औरतें कलाम नहीं सुना सकती। खुदा फरमा रहा है। कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है कि बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। बेटियां नबूवत करेंगी तो बेटियों को खुदा कलाम देगा तो वो नबूवत करेंगी ना। बेटियों को खुदा कलाम दे रहा है, बेटियां आगे से नबूवत कर रही हैं, आगे डिलीवर कर रही हैं। अगर बेटियां चुप रहेंगी, बेटियां चुप रहेंगी तो कलाम आगे डिलीवर होगा, कलाम आगे जाएगा। अब खुदा एक बेटी को नबूवत दे रहा है, बेटी को खुदा यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। उसने बेटी को कलाम दे दिया। अब बेटी खामोश रहे तो कलाम डिलीवर होगा? होगा डिलीवर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दुनियावी चीजों को देखकर कई बार रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। हमारे ज़हनों के अंदर ये बात आ जाती है कि हम नहीं ये काम कर सकते, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन खुदा फरमा रहा है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे जो जवान हैं, वो क्या करेंगे? जवानों के लिए भी काम है, बुढ़ों के लिए भी काम है। अगर हमारे बुढ़े जो हैं, हमारे जवान जो है वो काम कर रहे हैं तो जिंदगियां खुदा के साथ है जुड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ रसूलों के अमाल के अंदर ही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस वक्त जो है ये जब बयान किया गया है, इस वक्त 120 की जमात के ऊपर रूल कुछ नाजिल हो चुका हुआ है। ये बात जब बयान की गई है, इससे पहले आप सब जानते हैं जब रूल कुछ का नज़ूल हुआ है, 120 की जमात के ऊपर रूल कुछ नाजिल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे और जोरदार आंधी का सन्नाटा उनके दरमियान में था। तो लोग उनको बातें कर रहे थे, लोग उनको कह रहे थे कि ये मैं के नशे के अंदर है। उस वक्त पालूस रसूल जो है वो खड़े होते हैं और ये बात बोलते हैं, क्योंकि उस जमात के अंदर बेटे ही नहीं बेटियां भी शामिल थी। बेटे भी नहीं थे, सिर्फ बेटियां भी थी। कलाम के अंदर लिखा है मुकद्दसा मरियम खुद उस जमात के अंदर शामिल थी और उनके ऊपर रूह आकर ठहर गया, उनके ऊपर खुदा के रूह का नज़ूल हुआ और वो गैर जुबानें बोलने लगी और जोरदार आंधी, जोरदार सन्नाटा उनके चौगिर्द गर्दिश करने लगा और वो बुलंद आवाज से दुआएं करने लगी। हालेलुया। और वहां पर खुदा का कलाम जब उस पर नाज़िल हुआ तो उसने बताया कि हम कोई मैं के नशे में नहीं है, हमने कोई शराब नहीं पी हुई। ये खुदा का कलाम पूरा हो रहा है जो योएल नबी की किताब के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप योएल नबी की किताब देखें, उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं हर बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुढ़े और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़े और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। बहुत से लोग समझते हैं कि एवेंजलिज्म का जो काम है ना, ये रसूलों से शुरू हुआ है, ये रसूलों के साथ शुरू है। लेकिन यहाँ पर हमें बाइबल में पीछे से भी इस बात की गवाही मिलती है कि खुदा अपनी बेटियों को तैयार करने को है। हालेलुया। खुदा अपनी बेटियों को तैयार करने को है। वो कहता है मेरी बेटियां नबूवत करेंगी, और सिर्फ तैयार करने को नहीं है, वो पहले से काम ले रहा है अपनी बेटियों से। अगर आप कज़ात की किताब के अंदर एक नबिया का जिक्र है, आप उनको उसको देखें तो वो सिर्फ काम ही नहीं कर रही है। कलाम के अंदर लिखा है कि वो नबूवत भी किया करती थी और वो बनी इसराइल कौम का इंसाफ
क्या किया करती थी? इंसाफ किया करती थी। वो बनी इसराइल कौम के साथ साथ चलती और नबिया का काम भी करती, और खुदा ने उसके ऊपर जो है उसको मुनसिफ करार दिया। वो मुनसिफ का काम करती थी, इंसाफ किया करती। तो क्या इंसाफ का काम बगैर किसी इख्तियार के मिल सकता है? बगैर किसी अथॉरिटी के कलाम जो इंसाफ का काम है वो मिल सकता है? आज अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी ना हो और मैं यहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाऊँ और कहूँ कि जी मैं आप सबका इंसाफ करने आई हूँ, तो क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन जब मुझे इख्तियार मिल जाता है, जब मुझे खुदा ने इख्तियार दे दिया है, वो कहता है कि मेरे पास जो इख्तियार है वो मैं तुम्हें दिए देता हूँ। अब जो खुदा के पास, जो बाप के पास, जो यस्सु के पास इख्तियार है वो उसने हमें दे दिया। वो क्या कहता है? उसने कौन कौन से इख्तियार हमें दिए? कौन कौन से इख्तियार हैं जो उसने हमें दिए? क्या कोई बता सकता है उसने हमें कौन कौन से इख्तियार दिए हैं? उसने हमें सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचलने का इख्तियार दिया। हालेलुया। उसने मुझे कहा, उसने आपको कहा है कि आप बड़े बड़े काम करेंगे। तो क्या सिर्फ वहाँ पर बेटों का जिक्र है या बेटियों? कंबाइन जिक्र है, दोनों का जिक्र है। बेटे भी करेंगे और बेटियां भी करेंगी। वो कहता है मैंने तुम्हें क्या दिया हुआ है? इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचल दो। आज हम अपने इख्तियार से नावाकिफ हैं, आज हम अपने इख्तियार से अनजान हैं, इसीलिए हम अपनी खिदमत के अंदर पीछे रह जाते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें क्या किया है? इख्तियार दिया हुआ है। खुदा ने हमें ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप बेटे और बेटियां ये काम कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। उसने अपना इख्तियार सिर्फ इंसानों को दिया। क्या आप इस बात पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि उसने अपना जो इख्तियार है वो सिर्फ बशर को दिया? उसने अपना इख्तियार फरिश्तों तक को नहीं दिया। फरिश्ते उसकी आवाज़ को सुनते हैं और काम करते हैं। जब भी वो अपने फरिश्तों से एक बात कहता है, काम कहता है, वो करते हैं। वो कहता है फरिश्ता जाता है, वो कहता है फरिश्ता आता है, वो कहता है फरिश्ता पैगाम ले जाता है, वो कहता है पैगाम देता है, वो जब बोलता है वो काम करता है। लेकिन उसने अपने बेटे और बेटियों को ऐसा इख्तियार दिया है कि हम जुबान खोलते हैं और वो काम कर देता है। हालेलुया। हम सिर्फ अपनी जुबान ही खोलते हैं और वो बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया। ये किस वजह से है? इख्तियार की वजह से, अथॉरिटी की वजह से। आज उसने हमें इख्तियार दिया हुआ और हम अपने इख्तियार को भूल चुके हैं। हम अपनी अथॉरिटी को रद्द कर चुके हुए हैं। हम लोगों की बातों के अंदर आ जाते हैं। लोग जब बातें करते हैं ना तो वो कहते हैं जी बहनें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बहनें? आज खुदा अपने रूह और अपने जलाल के साथ अपनी बेटियों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि बेटियां हाथ रखती हैं, बदरू चीखे मारना शुरू हो जाती हैं। बेटियां हाथ रखती हैं, बीमार शिफा पाना शुरू हो जाती हैं। वो हाथ रखती हैं, लोग भुलकदे पाना शुरू हो जाती हैं। वो रसूलों वाले काम कर रही हैं। हालेलुया। रसूल कहते थे कि लंगड़े से के उठकर चलना फिरना शुरू कर दे, वो चलना फिरना शुरू कर देता था। वो कहते थे कि अपनी चार
गया, बाकी अदल से मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे कहा और मैंने गुनाह किया। वो बाप ने हमारे ऊपर से धोकर साफ कर दिया। हालेलुया। वो बाप ने हमारे ऊपर से उतार कर फेंक दिया है और कहा है कि बेटियां नबूवत करेंगी। हालेलुया। बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। होन बेटियां नबूवत वालियां होन ते जिंदगियां कलाम के मुताबिक हो या ना हो, जिंदगियां कलाम के मुताबिक हो या ना हो। अब एक नबिया हो और उसकी जिंदगी खुद कलाम के मुताबिक ना हो, वो कह सकती है कि कलाम आपको ये फरमा रहा है, कलाम आपको ये बता रहा है, कलाम आपसे ये बयान करना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो वफादारी मांगता है कलाम। खुदा का कलाम वफादारी चाहता है। जिस बेटी ने अपने बाप के साथ इतनी वफादारी की है, क्या वो खुदा के साथ वफादारी नहीं कर सकती? खुदा के साथ वफादारी नहीं कर सकती। बाप जीत कर आ रहा है और वो ढोल और ताशे लेकर उसके सामने पहुंच जाती है खुशी मनाने के लिए, खुशी करने के लिए। लेकिन बाप ने उसे बता दिया कि बेटी तेरी खुशी जो है ना, ये कुछ पल की है, कुछ वक्तों की है। भाई मैंने तो बाप के आगे ये वादा कर रखा है, मैंने तो बाप को अपनी जुबान दे रखी है कि जो चीज सबसे पहले सामने आएगी तेरी नजर काट दूंगा। जो चीज सबसे पहले मेरे सामने आ जाएगी वो मैं तेरी नजर काट दूंगा, वो मैं तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। तो बेटी तू मेरे सामने आ गई है। उस वफादार बेटी ने कहा ए बाप कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, बस मुझे कुछ दिन दे दे, उसके बाद मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। और उसने अपने वादे से इनकार नहीं किया, वो मुकरी नहीं, बल्कि वो जो वक्त उसने लिया वो वक्त गुजारने के बाद वो बाप के सामने आकर हाजिर हो गई और उसने कहा कि देख बाप मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, तूने जो वादा बाप के साथ किया था मेरी जिंदगी से वो निभाना शुरू कर। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी तेरे सामने लेकर आती हूँ, तेरा वादा टूटना नहीं चाहिए। ये अथॉरिटी है आपके बाप की कि अपनी जिंदगी को भी हम अपने बाप के सामने ले आए। अगर अथॉरिटी ना होती तो वो डर जाती, वो घबरा जाती, वो परेशान हो जाती, वो कहती अभी तो जवान हूँ, अभी तो कवारी हूँ, मैं तो जिंदगी के अंदर कोई ऐसी खुशी नहीं देखी, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन उसने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो एक वफादार बेटी थी। आज हम चाहते हैं कि हम नबियाँ हों, आज हम चाहते हैं कि जब हम कलाम बयान करें, जब हम अपना हाथ बढ़ाएं तो खुदा मोजज़ात करे। तो क्या हम वफादार हैं जिंदगियों के अंदर? क्या हमारी जिंदगी के अंदर इस बेटी की तरह वफादारी है? आज तो हम सिर्फ अपने दुपट्टे को लेकर, न सिर्फ अपने दुपट्टे को लेकर खुदा के कलाम को पीछे कर देते हैं और अपनी हम जिंदगी को आगे कर लेते हैं, सिर्फ अपने दुपट्टे को लेकर। कलाम के अंदर लिखा है कि जब तू दुआ करे या जब तू नबूवत करे तो तेरे सर पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जी? क्या होना चाहिए? बुलंद आवाज से दुपट्टा तेरे सर के ऊपर होना चाहिए। पालूस रसूल बड़े सख्त अल्फाज बयान करते हैं, वो कहते हैं या तो तू दुपट्टा ले ले, या अगर नहीं तो फिर तो अपना सर मुंडवा ले, क्योंकि बगैर दुपट्टा लिए दुआ करना या नबूवत करना सर मुंडी के बराबर है। अगर तू नहीं चाहती है तो फिर तू ओढ़नी ओढ़ ले, अगर नहीं तो फिर तू अपने बाल को कटवा ले, फिर तू टिंड करवा ले। आज हम चाहते हैं कि हम नबियाँ हों, हमारी ज़िंदगी के अंदर नबियों वाले काम हों, हम नबिया की तरह बात करें, हम खुदा से डायरेक्टली कलाम को लें और आगे डिलीवर करना शुरू कर दें और हमारी ज़िंदगियाँ कलाम के मुताबिक हैं कि नहीं। क्या आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? कलीसिया में साथ रहें, सीखने की ज़रूरत है कि नहीं कि आज हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से खुदा ने हमें हुक्म दिए हुए हैं और हम उसको लेकर चलें। जो नबिया बनी इसराइल कौम की इंसाफ करने वाली थी, क्या वो कलाम के मुताबिक नहीं चलती होगी? क्या उसकी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक नहीं होगी? वो पूरी तौर पर कलाम के मुताबिक थी। जिस तरह से कलाम बयान करता है वो वैसे ही काम किया करती थी। कल खुदा का कलाम उसे जो बयान करता था वो किया
बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, 10-10 हज़ार बंदे ले और पहाड़ पर चढ़ जा, ये तेरे साथ काम होने वाला है। और उसने कहा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आप पढ़कर देख सकते हैं कज़ाब की किताब के अंदर, कज़ाब की किताब के अंदर इस बात का जिक्र है। चौथा बात और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और बड़क ने उससे कहा अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदा सिसरा को एक औरत के हाथ में बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ चल पड़ी। हालेलुया। खुदा वो खुद कह रही है कि अगर मैं तेरे साथ चलूंगी ना तो तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। किसी ने कहना है एक औरत इसके साथ आई, एक औरत इसके आगे आगे आई, जबकि उसके पास पूरी फौज, उसके पास पूरे सिपा सलार, उसके पास पूरा लश्कर है, वो फिर भी कहता है कि सारियां चीज़ें एक तरफ, खुदा दी बंदी एक तरफ। हालेलुया। सारी चीजें एक तरफ है, खुदा की नबिया एक तरफ है। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी ना तो मैं तेरे साथ, हम आगे नहीं जाएंगे, हमने आगे ही नहीं बढ़ना, हमने कहाँ जाना, हमने तेरे साथ साथ जाना। उसने कहा तेनू कोई इज्जत नहीं मिलनी, तेरी कोई इज्जत नहीं होनी। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू हमारे साथ साथ चल तो हम आगे बढ़ेंगे, तू हमारे साथ साथ रहेगी तो हम आगे जाएंगे। और कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज कि खुदा की बंदी उनके साथ साथ चली और खुदा ने उन्हें फतह मुहैया की। हालेलुया। वो साथ साथ रही उनके और खुदा ने उन्हें फतह जैसी कामयाबी अता की। आज हम कोशिश करते हैं, हम खिदमत भी बड़े जोर से कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खिदमत ही बहनों के अंदर। आप चर्चेस के अंदर देख लें, ज़्यादा बहनें ही मौजूद होती हैं, बहनें ही सबसे आगे होती हैं खिदमत करने में। हर चर्च के अंदर, हर जगह पर बहनें सबसे आगे हैं। तो क्या बहनों को फिर कलाम के मुताबिक होना चाहिए? हर एक बहन की ज़िंदगी के अंदर से कलाम जाहिर होना चाहिए। हर एक बहन की ज़िंदगी से के अंदर से कलाम और जलाल जाहिर होना चाहिए। मेरा ईमान है कि जब हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर सिर्फ खादमा ही नहीं, मुबश्शिरा ही नहीं और परस्तारा ही नहीं, या हम इवेंजलिज्म ही नहीं, बल्कि हर एक रूह जिस पर उसने अपना रूह डाला हुआ है वो जलाली काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हर बशर पर उसने अपना रूह डालना है, हर एक बशर पर उसने अपना रूह डालना है। जब उसने अपना रूह डालना है तो फिर जलाल जाहिर होना है। हालेलुया। सो ज़रूरत इस बात की है कि जब हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कलाम के मुताबिक सीखते हैं, फिर हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जिन बहनों को खुदा ने कलाम के लिए चुना हुआ है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करेंगी और कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।